आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी के सबब परवाज़ें मुतासिर। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंतज़ामिया की मुसाफिरों से ताउन की अपील, जल्द होगा मसला हल। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने नेशनल लैंड स्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर का किया इफ्तिताह, बचाई जा सकेगी लोगों की जानें। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किडनी निकालने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, सरगना समेत 8 अफराद गिरफ्तार। बिल्कीस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमीन की उबूरी जमानत की दरख्वास्त को किया मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर उठाए सवाल। बांग्लादेश में तलबा और पुलिस के माबैन तसादुम, हालात कशीदा, तकरीबन 40 अफराद की मौत, बेरोजगारी के खिलाफ नाराजगी। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में तकनीकी खराबी का असर हिंदुस्तान में भी हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट को आलमी सतह पर आउटेज का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से परवाज़ें भी मुतासिर हुई हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली टर्मिनल 3 से ये वीडियो है, जहां एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने ट्वीट किया है। आलमी सतह पर IT खराबी की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ खदमात मुतासिर हुई हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि मुसाफिरों की परेशानियों को कम करने के लिए काम हो रहा है। मुसाफिरों से एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने अपील की है कि एयरलाइन या ग्राउंड हेल्प डेस्क से रब्ता करें। शहरी आवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू ने भी हिदायत जारी की है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर BJP के लीडर राजीव चंद्रशेखर ने भी बात की। Is online. It is certainly something that is of great concern because number one, Microsoft 365 and the Microsoft suite is used by millions of Indians, small businesses, big businesses, individual users, hospitals, and therefore any outage on this platform it disrupts the business and 24/7 operations of many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. Sir, including flights, they are also... Yes, there is no doubt that whether you're a patient in a hospital or you're working in a small business, or you are a passenger on an airline that depends on these platforms, today will be a day where you will see a lot of disruption, panic, chaos, because so many companies and so many businesses and so many users depend on this platform. And my request is not to panic. There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient. Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the coming days. But in meanwhile, I will appeal as an individual that we should not panic. The government of India is certainly going to be, I'm very confident, engage with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services, they are tweeting continuously. What do you think? How do you think that Microsoft, how quickly they will resolve such? I cannot comment on that, but what I'm reading online, and I'm seeing their tweets that they are trying to. They have admitted that there is a degrading of their service, and that they are also saying that they are slowly and systematically restoring it. As somebody who's been in technology for some decades now, I can tell you a complex system like this, when it crashes, it needs to come back online through a very series of very steady steps.
and it is not like switching on and off a switch. So there is a process by which they will bring this system back online. And it will. I'm pretty sure that it will take some time, and that Microsoft, as a credible company, as a company that is doing a lot of work in India, will certainly do this eventually. But what has caused it, and in the coming days, what steps they will take, and other platforms like them will take to make sure there is never such a disruption in the future, is certainly something that I look forward to have. मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर विक्रमादित्य सिंह के साथ चंडीगढ़ में मुलाकात की और बातचीत की। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर से कहा, हमारे कुछ इश्यूज़ थे जिन पर हमें इत्मीनान बख्श जवाब मिला है। यकीनी तौर पर बिजली, स्मार्ट सिटी, शहरी तरक्यात के मंसूबों पर बात हुई है। हमें उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी। उन्होंने बिजली से जुड़े हमारे घाटे की भरपाई के लिए बिजली के रिफॉर्म के लिए मदद देने की बात कही है। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बैठकें दिल्ली में होती थी वो इन्होंने कल शिमला में करने की बात की थी, लेकिन मौसम खराब के बाद इन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ में इस बैठक को बुलाया और हमारे कुछ विषय थे, उस विषय पर सकारात्मक जवाब मिला है। निश्चित तौर पर बिजली से संबंधित थे, स्मार्ट सिटी से संबंधित थे, अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जिन पर पड़ोसी होने के नाते उसका भी हमें थोड़ा फ़ायदा इनसे मिलेगा, उम्मीद करते हैं। और जो हिमाचल के राइट्स है उसके बारे में मैं इनसे मिला था, चाहे वो शानर प्रोजेक्ट्स है और चाहे वो हमारे एसजे बीनल के साथ भोला से दलूरी सुन्नी प्रोजेक्ट है, सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यहाँ तो सिर्फ चर्चा हमारे बिजली से संबंधित जो लॉसेज है उस पर हुई कि उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ स्मार्ट मीटर्स की है, सिस्टम फीडर्स की है, सब प्रकार के बिजली के रिफॉर्म्स के लिए फ़ायदा मिलने की बात हिमाचल प्रदेश की है। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 75 साल से हिमाचल प्रदेश में कोई नई सिटी नहीं बनी है, तो जो सिटी की प्रपोजल हमारी गई है उस पर उन्होंने कहा कि गंभीरतापूर्वक हमारी केंद्र की सरकार उस पर विचार करेगी। और निश्चित तौर पर यूएलबी से संबंधित मीटिंग्स थी, सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद मैं धन्यवाद मंत्री जी का करना चाहूँगा कि मंत्री जी ने बैठक बुलाई और जिसमें मैं और हमारे यूडी मिनिस्टर्स हमने सबने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली है। तो अब जो ये मीटिंग से क्या होता है कि जो संवाद स्थापित होता है, जो समस्याएं होती है उसमें आगे बढ़ा जाता है और संवाद से ही विवाद का समाधान निकलता है। तो मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और भविष्य में हम उसमें आगे बढ़ेंगे। शहरी विकास मंत्री और पावर मिनिस्टर से हिमाचल की समस्याओं से संबंधित बात रही है और निश्चित रूप से हमारा संवाद स्थापित हुआ है। पावर प्रोजेक्ट से संबंधित हमारी बात, इन सब बातों पर हमने बात की है, चाहे धौला सिद्ध है, सुन्नी है, लूरी है, वो बात मेरी इनसे पहले हो चुकी थी, तो उसमें हमने अपनी रॉयल्टी फ्री मांगी है। अब देखते हैं उस पर आगे बढ़ जाएगा। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में नेशनल लैंड स्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की हिदायत पर हमारी वजारत जीएसआई के ज़रिए इस नेशनल लैंड स्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का आगाज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे जीएसआई के अफसरान और साइंसदानों ने बहुत मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। मुल्क में अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। इस सेंटर के ज़रिए हम पहले ही बता पाएंगे कि लैंडस्लाइड होने की उम्मीद है। चट्टाने खिसकने या तौदे गिरने को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन हादसे में जिन लोगों की जान जाती है उसे रोका जा सकता है। हमारा मिनिस्ट्री जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का आज प्रारंभ हुआ है। लगातार हमारे जीएसआई के ऑफिसर, साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके इसका सेंटर का आज प्रारंभ किया है। आज देश में आप उत्तराखंड देखिए, अलग अलग प्रांतों, हिमाचल प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर,
जैसे अमरनाथ यात्रा होती है, सभी जगह जब लैंडस्लाइड के कारण बहुत बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, मासूम लोगों का जान जाते हैं और प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, जो प्रिपरेशन मालूम नहीं पड़ता कब होता है कब नहीं। अभी इस सेंटर के द्वारा हम फोरकास्टिंग करके उस स्टेट गवर्नमेंट्स को, उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एनजीओस को आने वाले दिन में लगातार हम पहले ही बताएंगे ये लैंडस्लाइड होने का चांसेस है, उसमें पूरा अलर्ट रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए। इसके कारण जितने हो सकते हैं उतने लैंडस्लाइड का एक्सीडेंट्स कम करना है। लैंडस्लाइड तो नहीं रोक सकते हैं, मगर लैंडस्लाइड्स का द्वारा जो मासूम लोगों का जान जाते हैं उसको बचा सकते हैं, प्रॉपर्टीज बचा सकते हैं। इसके लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्रिकॉशन लेना है आने वाले दिन में ले सकते हैं। ये हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा जेएसआई को आदेश मिला है, जिम्मेदारी मिला है। जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे जेएसआई के अधिकारीगण, साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके अलग अलग प्रांतों में, फील्डों में जाकर देश के अलग अलग अभी तक जितने लैंडस्लाइड्स हुआ है इसका बैकग्राउंड देखते हुए रिसर्च करके आज इस सेंटर को उद्घाटन किया है। इसमें एक पहला कदम है, बिल्कुल और आगे बढ़ेंगे हम। देश को इस रास्ते में टेक्नोलॉजी के द्वारा और देश को विकास का रास्ते में ले जाना, ऐसे एक्सीडेंट से बचाना, जरूर हम आने वाले दिन में और मेहनत करेंगे। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मसाइल पर बात की है। उन्होंने कहा है कि आज दवाइयों पर भी जीएसटी लगी है। पिछले 5 साल में सेहत का बजट 2.4 से घटकर 1.9 रह गया है। हालात ये हैं कि 2023 में हमारे मुल्क के 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। ऐसे में अगर पोलियो और चेचक जैसी बीमारी लौट आई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वास्थ्य, ये ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, वो फोटो भी बहुत सारी चीजें दिखा रही है। अभी अस्पताल चले जाइए तो जीएसटी देना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए, दवाइयों पर भी जीएसटी है। लेकिन हेल्थ पर एक्सपेंडिचर लगातार कम हुआ है। पिछले 5 सालों में टोटल बजट का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर 2.4% से घटकर 1.9% हो गया है। 2.4% 5 साल पहले हम टोटल बजट का स्वास्थ्य पे खर्चा करते थे, अब 1.9 करते हैं। और आप सब जानते हैं कि 2023 में हमारे देश के 16 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा है। बच्चे के जन्म से उसके 1 साल की उम्र तक बच्चे को 9 से 10 टीके लगते हैं। डिप्थीरिया का, टेटनस का, चेचक का, हेपेटाइटिस का, पोलियो का। और इन्हीं के चलते हम पोलियो से मुक्त हो पाए, इन्हीं के चलते हम चेचक से मुक्त हो पाए। लेकिन इस सरकार ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। 16 लाख हमारे बच्चे ऐसे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में हर साल पैदा होते हैं। 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। तो हम क्यों ना ये भय और आशंका लेकर चले कि क्या पोलियो और चेचक जैसी बीमारी दोबारा से लौट सकती है? इसका जिम्मेदार कौन है? असलियत यह है कि यूपीए की सरकार ने इस देश को पोलियो मुक्त किया, तमाम वैक्सीनेशन दिए, ढिंढोरा नहीं पीटा। यहां ढिंढोरा पीटने और एहसान लादने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन कोविड से सीखा क्या? नील बटा सन्नाटा। हेल्थ का बजट 2.4% से घटा के 1.9% किया और 16 लाख बच्चों को टीकों से रहित रखा। ये वो देश है जो वैश्विक भूख के सूचकांक में, द हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है 125 देशों में। हमारे यहां कुपोषण एक त्रासदी है। बिल्किस बानो मामले में एक ताज़ा अपडेट आई है। वाज़ेह है कि बिल्किस बानो केस के 2 कसूरवारों की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। इन मुजरिमीन ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए 8 जनवरी को गुजरात सरकार के फैसले को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज किया था और अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर सवाल उठाते हुए 19 जुलाई को उन्हें समाज से खारिज करते हुए मुस्तरद कर दिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि किडनी निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस डीसीपी क्राइम अमित गोयल ने बताया कि हमने रियासती सतह पर चलने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जिसमें संदीप आर्य अहम सरगना है। ये मरीज और डोनर की पहचान करते थे और फिर फर्जी दस्तावेजात तैयार करके ट्रांसप्लांट करवाते थे। संदीप एक ट्रांसप्लांट के 40 लाख रुपए लेता था। इन 8 लोगों में कोई फर्जी दस्तावेज तैयार कराता था, कोई डोनर को लाता था। ये मरीज के रिश्तेदार के नाम पर दस्तावेज तैयार करते थे। दस्तावेजों की जांच हो रही है। 6 रियासतों में 11 अस्पतालों के बारे में पता चला है जहां ऐसा किया जाता था। 5 मरीज और 2 डोनरों को ट्रैक किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें शिकायत मिली थी कि संदीप आर्य नाम के शख्स ने ट्रांसप्लांट के लिए 35 लाख रुपए लिए थे, लेकिन ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। ये हमने इंटरस्टेट जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें कुल अभी तक लोग 8 गिरफ्तार हमने कर लिए हैं, जिसमें मेन किंग पिन इनका संदीप आर्य था। ये बेसिकली पेशेंट्स और डोनर्स को आइडेंटिफाई करते थे अपने अलग अलग दोस्त गैंग मेंबर्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर उनके नकली कागजात बनवा के एज रिलेटिव्स दिखाने के लिए कमेटी में, फिर उनके कागजात बनवा के उनका आगे जाके ट्रांसप्लांट करवाते थे। तो इसमें जनरली ये जो संदीप है पेशेंट से 35 से 40 लाख रुपए लेता था पर एक ट्रांसप्लांट के लिए, जिसमें कि सारी कॉस्ट में इंक्लूडेड होती थी। और फिर डिपेंडिंग ऑन दी, अगर कोई आदमी उसको डोनर दे रहा है उसको 1 लाख दे दिया, कोई पेशेंट दिलवा रहा है उसको 5 लाख, और जो कोई अलग से जो एक्चुअल में डोनर है उसको 4 से 5 लाख, जो नकली कागजात बनवा रहा है उसको 50,000, जो पे डोनर को ग्रूम कर रहा है उसको 50,000। तो उस तरह से अलग अलग इन्होंने उस तरह से रेट बांध रखे थे। क्या ये सभी किरदार इन 8 लोगों में ही शामिल है या फिर इनके अलावा भी कुछ है? ये 8 लोग जो हैं इनका क्या क्या किरदार? इन सभी का ऐसे ही रोल डिफाइंड है। कोई कागजात बनाता था, कोई डोनर को ग्रूम करता था, कोई पेशेंट लाता था, कोई डोनर लाता था। कुछ इनमें से 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने खुद पहले इनके थ्रू डोनेट कर रखी है, फिर इनके साथ जुड़ गए। एक ऐसा है जिसने अपनी वाइफ को किडनी दिलवाई थी इनके थ्रू, फिर इनके साथ जुड़ गया कि 2 पेशेंट और दिलवा दिए। तो इस तरह से इनका नेक्सस था। तो सर, ये जो नकली कागजात बनाते थे, कागजात किसके नाम से बनते थे और क्या पूरा प्रोसेस था? कागजात तो जनरली जो पेशेंट है, पेशेंट के कोई रिलेटिव जिसका वो होता है उसको उसके नाम से ही बनते थे एज डोनर। बाकी फिर आगे वो उस हिसाब से उसकी वो नकली जो भी उनको नकली कागजात बनाने होते थे उसका एड्रेस प्रूफ या वो दिखाने के लिए वो सब वो करते थे। तो कमेटी में कैसे पास हो जाती थी? क्या कमेटी के लोग भी इनके साथ शामिल हैं? क्या उनको भी कुछ पैसा वगैरह जाता? अभी तक ऐसा कोई इनके पूछताछ में या जो भी डिटेल्स आई हैं उनमें नहीं आया। अब कागजात वगैरह उनको एग्जामिन करेंगे, उसमें कुछ आएगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लगभग हॉस्पिटल्स में और कितने लगभग स्टेट्स में ये अभी चल रहा था इनका? ये 11 अस्पताल बताए गए हैं 6 स्टेट में, जिनमें अलग अलग जहाँ पे इनको ठीक लगता था, सूट करता था, वहाँ पे ये कार्रवाई कर देते थे। सर, अभी तक कुछ डोनर्स वगैरह या फिर पेशेंट्स वगैरह से आप लोगों की बातचीत हुई है, उनका क्या क्या है? हमने 5 पेशेंट्स और 2 डोनर को भी ट्रैक कर लिया गया, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया है। तो इसमें कोई कंप्लेंट भी मिली आपको सर? हाँ जी, लेडी कंप्लेनेंट से कंप्लेंट मिली जिस पे केस दर्ज हुआ। क्या कंप्लेंट थी सर लेडी की? वही कि ये संदीप आर्य नाम के आदमी ने 35 लाख रुपए लिए और ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, जो कि नहीं हुआ था। तो जो कि नहीं हुआ था, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सर? जी जी। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के हादसे के बाद रेलवे लाइन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग जख्मी हुए हैं। शिमाल मशरक़ी रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि डाउन लाइन पर जो डिब्बे पटरी से उतरे थे उन्हें हटा दिया गया है। लाइन बहाल किए जाने का काम तेज़ी से चल रहा है। अप लाइन पर जल्द ही ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त शुरू हो जाएगी। लाइन को डीजल फिट डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद से मैन पावर मशीनरी का मूवमेंट उससे शुरू हो पाया, जिससे डाउन लाइन का रेस्टोरेशन का कार्य शुरू किया गया। और सबसे पहले जो मशीनरी थी उसको ART जो है रेलवे की जो ट्रेन होती है उसको ले जाकर जो डाउन लाइन पे जो कोचेस डिरेल थे उनको ऑफ ट्रैक किया गया और सभी कोचेस को ऑफ ट्रैक कर दिया गया है। रेस्टोरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और लगभग 800 से ज़्यादा कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। 4 पोकलेन, 4 JCB, हाइड्रा और ढेर सारी मशीनें वहाँ कार्य कर रही हैं। जो TRD का कार्य होता है उसका कार्य किया जा रहा है। अप लाइन को बहुत जल्द फिट डिक्लेयर करके उस पर नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। डाउन लाइन के लिए जो स्लीपर्स डैमेज थे, रेल की आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें पहुँचाई गई हैं साइट पे और उसका रेस्टोरेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है।
आज हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 12 बजे तक टीआरडी फिट करके अप लाइन में नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू करेंगे और उसके बाद से जल्दी डाउन लाइन का भी रेस्टोरेशन कार्य पूरा करके संचालन शुरू किया जाएगा। सर कितनी कैजुअलिटी हुई थी और उनको क्या सहानुभूति राशि वगैरह क्या दी गई है? जो फाइनल कैजुअलिटी की फिगर है वो 3 है। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 7 लोग इसमें सिंपल इंजरी हैं, 5 लोग ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। तो ये टोटल फिगर है और कल जो अनुग्रह राशि की जो बात कर रहे हैं वो अनाउंस की गई थी। 10 लाख रुपए जो डिसीज्ड हैं उनको एक्स ग्रेसिया अनाउंसमेंट किया गया था। 2.5 लाख रुपए ग्रीवियसली इंजर्ड और जो सिंपल इंजरी के लोग हैं उनको 50,000। तो ये राशि भी दी जा रही है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट द्वारा। सर क्या मौतों की आंकड़ा और बढ़ सकता है? अभी जो फाइनल फिगर हम लोगों के पास आई है और ऑथेंटिक वो यही है जो मैंने आपको बताया है। 3 डेड, 5 ग्रीवियसली इंजर्ड एंड 7 सिंपल इंजरी। अभी कितने ट्रेनें प्रभावित हैं सर? अभी ट्रेनों का डाइवर्सन हम लोग लगातार कर रहे हैं। कल जो भी ट्रेनें थी उनको डाइवर्टेड रूट पे हम लोगों ने चलाया है और उसको लेकर बुलेटिन जारी किया है। आज भी जो ट्रेनों का डाइवर्सन होगा उसको किया जाएगा। हम लोग बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं कि 12 बजे से अप लाइन नॉर्मल रूप से टीआरडी फिट हो जाए, जिससे कि ट्रेनों का नॉर्मल संचालन मेन लाइन से शुरू हो सके। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया कि 800 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। साइट पर मशीनरी लगी हुई है और लगातार रात से ही लगातार कार्य चल रहा है और सभी जो रेल कर्मी हैं, साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी हैं, सभी लोग साइट पर कार्य कर रहे हैं। सर क्या घटना का कारण कुछ पता चलता है? इसके लिए हाई कमेटी ऑर्डर हुई है जो इस पे जांच करेगी और इसका रिपोर्ट देगी। सर लोको पायलट ने तेज आवाज़ सुनी थी, इसको लेकर क्या कहेंगे कुछ? जो भी अभी देखिए पूरी घटना की जांच का जिम्मा ऑलरेडी हाई पावर कमेटी को दे दिया गया है। कमेटी इस पे जांच करेगी और इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट देगी। सर जो पीड़ित थे क्या अभी चले गए सारे लोग कि अभी कुछ भर्ती भी है, इलाज चल रहा है? कुछ लोग अभी गोंडा हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है और लेकिन जितने जो यात्री थे इसमें और उनको रात में हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन चलाई थी और स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनको उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया। क्या लगता है कि कब तक पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी रात बचाव की? देखिए वहाँ पर रेस्टोरेशन का कार्य अभी चल रहा है और हम लोगों का पूरा फोकस है कि सबसे पहले जो है अप लाइन को टीआरडी फिट करके वहाँ ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। उसके बाद से डाउन लाइन पर चूँकि वहाँ पे स्लीपर और रेल्स डैमेज हुए हैं तो उनके लिए मटेरियल वहाँ पे पहुँचा दिया गया, उनको बदलने का कार्य चल रहा है। जो टीआरडी का कार्य है, बिजली का कार्य, वो भी चल रहा है। तो तेज़ी से इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा और जल्द से जल्द वहाँ पर ट्रेनों का नॉर्मल संचालन शुरू किया जाएगा। बहुत सारी ट्रेनें प्रभावित हैं, तो ऐसे में यात्रियों को क्या मैसेज देंगे सर? ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही हैं और डाइवर्ट करके हम लोग ट्रेनों को चला रहे हैं। सभी को बल्क मैसेजिंग भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो है जो हमारे स्टेशन हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट भी लगातार चल रहा है। प्रेस रिलीज के माध्यम से, सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज जो हमारे हैं उसके माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से सभी को सूचना दी जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में मुआविन पुलिस एहलकारों ने एहतजाज किया है। एहलकारों ने तनख्वाह में इजाफे और मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा किया है। पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी। कर्नाटक में ज़बरदस्त बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात हैं। मंगलोर में भारी बारिश के सबब कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्लई मुहिलान ने सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया है। बांग्लादेश में बेरोजगार तलबा के एहतजाजी मुजाहरे में शिद्दत आ गई है। तलबा के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे मुल्क भर में फैल गए हैं। पुलिस के माबैन हुए तसादुम में अब तक तकरीबन 40 अफराद हलाक हुए हैं। कौमी टीवी स्टेशन समेत कई इदारे मुजाहिरीन के गुस्से का शिकार हुए हैं। इसके अलावा इदारों को आग लगा दी गई, जबकि इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। हुकूमत के अहकामात पर यूनिवर्सिटियाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं। ढाका में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब, सारा